السلام علیکم، رحمت رمضان میں خوش آمدید۔ میں ہوں احمد شاہین، میں ہوں آپ کے ساتھ نیلم اسلم۔ امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے، اور اب آخری اشرا شروع ہو جائے گا اور بہت سارے آپ میں سے لوگ اعتکاف میں بھی بیٹھیں گے، تو ہم یہی کہیں گے کہ دعاؤں میں یاد رکھیں، خاص طور پر مسلم امہ کے لیے دعا کریں۔ فلسطین میں اس وقت جو صورتحال ہے، اپنے فلسطینی بھائیوں کے لیے دعا کریں۔ پاکستان میں اور ایون اگر ہم انگلینڈ میں بھی دیکھیں، اس وقت جو مہنگائی کی صورتحال ہے، لوگوں کو جابس نہیں مل رہی، اس وقت کافی کرائسس کی سچویشن ہے بہت سارے پوری گھرانوں دنیا کے ہی لیے۔ بالکل نیلم آپ نے ٹھیک کہا۔ اور رمضان المبارک کا ایک مقصد تو یہ بھی ہے کہ ہم ان تمام لوگوں کو یاد رکھیں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، ہر طرح سے ان کے لیے جو بھی کر سکتے ہیں وہ کریں۔ بہرحال نیلم، اپنے گیسٹ کے پاس اور کچن میں جانے سے پہلے کوئکلی بتائیے گا آپ کا رمضان اب تک کیسا رہا؟ میرا چونکہ لاسٹ ایئر میں تھی، میں یہاں پہ پڑھ رہی تھی، لیکن میں پھر بھی ایک مہینے کی چھٹی لے کے مجھے تھا کہ رمضان پاکستان میں کروں، تو چلی گئی تھی۔ مجھے بس یہاں پہ یہ لگتا ہے کہ جو سحری کا ٹائم ہے وہ پیچھے آتا جا رہا ہے، اور افطاری کا ٹائم آگے بڑھتا جا رہا ہے۔ یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ کیا ہے، مطلب اگر سحری پیچھے جا رہی ہے تو افطاری بھی پیچھے آنی چاہیے، تو بس اس طرح کا چلا۔ لیکن اللہ کا شکر ہے، چونکہ اسلام چینل سے وابستہ ہیں، تو ایک پاکستان کی اور وہ پوری جو رمضان کی وائبز ہیں اور فیلنگز ہیں وہ یہاں پہ موجود ہوتی ہے۔ تو ناظرین، آج بھی ہمیشہ کی طرح ہمارے پاس بہت خوبصورت، بہت زبردست گیسٹ بھی موجود ہیں، بہترین گیسٹ ہیں، اور لڑکیوں کا جو پلڑا ہے نا وہ آج بھاری ہے۔ احمد اپنے آپ کو تنہا یہاں پہ محسوس کر رہے ہوں گے، لیکن سب سے پہلے ہم کچن میں چلتے ہیں کیونکہ سامیہ نے اپنا کام شروع کر دیا۔ السلام علیکم سامیہ، السلام علیکم، بس الحمدللہ ٹھیک ٹھاک۔ اب لوگ آج کون سی کوئک ریسیپیز ہمارے لیے بنا رہی ہیں؟ آج زیادہ میگا کوئک، کیونکہ جیسے پہلے آپ لوگوں نے مینشن کیا کہ کافی لوگ اتکاف بیٹھ چکے ہیں، اور اب زیادہ تر لوگ بہت اب تھک چکے ہیں کہ ہم لوگ بنا کے کھانا بہت تھکے ہوئے ہیں، تو جلدی تو آج ہم لوگ اور تھوڑا زیادہ جھٹ پٹ چیزیں بنائیں گے۔ کافی چیزیں اگر آپ تھوڑا سا ایز اے سے تھنک آؤٹ آف دا باکس کریں تو آپ کو زیادہ چیزیں آپ آئٹمس بنا سکتے ہیں۔ ایک بہت سمپل چیز ہم لوگ بنائیں گے، اسٹفڈ یورکشائر پڈنگس۔ سو یورکشائر پڈنگس اس طرح آپ کو آرام سے بازار میں مل جاتے ہیں، اور یہ ہم لوگ نارملی ایک ٹپیکل روسٹ ڈنر کے ساتھ کھاتے ہیں، لیکن اس کو ہم لوگ جیسے اپ سائیکل یا تھوڑا ایلیویٹ کریں گے۔ اس کے اندر ہم لوگ ایک اسٹفنگ بنائیں گے، اور اس اسٹفنگ میں ہم لوگ آپ کوئی سی بھی اسٹفنگ یوز کر سکتے ہیں۔ میں نے آج جو تھوڑا میرے کچھ چکن بچ گیا تھا، تو میں روسٹ چکن، چیڈر چیز، کریم چیز، پیپرز، سویٹ کارن، اور اس میں تھوڑا سا اوریگنو، تھائم اور بازل ڈالوں گی۔ آپ کوئی سی بھی اس میں ہربز وغیرہ ڈال سکتے ہیں، اور اس کے بعد ہم لوگ مکس کر کے اس کا مکسچر بنا کے اس کو ہم لوگ اسٹف کریں گے، اور ایک پری ہیٹڈ اوون میں آپ اس کو تقریباً 10-15 منٹ کے لیے رکھیں۔ آپ کا لولی ایک جیسے فنگر فوڈ جو ہے بن جائے گا۔ اور کافی لوگوں کو ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کو کچھ کھانا ہے لیکن زیادہ مطلب بنا نہیں سکتے یا اسٹوو یوز نہیں کر سکتے ایکسیٹرا، سو یہ بہت آسانی سے آپ ایئر فرائی میں بھی بنا سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ اوون میں بھی یہ بن جائے گا۔ سامیہ، آج آپ پیاری بہت لگ رہی ہیں، اور آپ نے جو ہم تو ٹویننگ ہے نا، لائک ہم نے بڑا بالکل آج ہم لوگوں کا ڈیفینیٹلی بلیک اینڈ ریڈ تھیم پورے اسٹوڈیو میں چل ستاروں رہا والا ہے۔ آپ کا جو دوپٹہ ہے نا، مجھے دور سے بڑا چمکتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ سو ہم لوگ یہ شروع کرتے ہیں، جب مکسچر ریڈی ہو جائے گا اس کے بعد ہم لوگ اپنی دوسری ریسیپی کی طرف بہت شکریہ آپ کی جانب، ہم واپس آئیں گے۔ اور اس وقت اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ بہت ہی پیاری دو گیسٹ اب موجود ہیں۔ پاکستان سے ان کا تعلق ہے، پاکستانی ہے، اس لیے میں ذرا زیادہ ایکسائٹیڈ ہو کے بتا رہی ہوں، میں تھوڑی سی انکلائنڈ ہوں، تو obviously پاکستانی ہوں تو تھوڑا نظر بھی آئے گا۔ پیاری بھی بہت ہے، اور لڑکیوں میں جب ایکٹیویزم آتا ہے، جب شعور آتا ہے، جب وہ آواز اٹھاتی ہیں اور کھل کر آواز اٹھاتی ہیں، اور نہ صرف آواز اٹھاتی ہیں، دوسروں کو بھی گائیڈ کرتی ہیں، تو مجھے سب سے زیادہ فخر اس وقت محسوس ہوتا ہے۔ اور اس وقت جو ہماری دونوں گیسٹ ہیں، ایک تو براڈ کاسٹر ہیں، جرنلسٹ ہیں، آمنہ گیلانی، آپ نے ان کو ٹی وی پر دیکھا ہوگا، جیو نیوز پہ آپ نے ان کو خبریں پڑھتے دیکھا ہوگا، دنیا ٹی وی پر دیکھا ہوگا، اور ٹویٹر پہ بہت زیادہ ایکٹیو رہتی ہیں، جو بھی کوئی ایشوز ہوں اس پہ سب سے پہلے ان کی آواز ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ماہین فیصل، ان کی خاص بات یہ ہے کہ یہ اسٹوڈنٹ ہیں لا کی، اور ابھی یونیورسٹی اسٹوڈنٹ ہونے کے باوجود ان کی سوچ، ان کا شعور جو ہے وہ بہت اچھا ہے، بہترین ہے، اور یہ بھی لوگوں کے لیے مشعل راہ بن رہی ہیں، لوگوں کو گائیڈ کر رہی ہیں، اسٹوڈنٹس کے لیے انسپریشن بن رہی ہیں۔ تو مجھے یہ جو اسٹرانگ خواتین ہیں پاکستان کی، ان کو دیکھ کے اور بھی فخر ہوتا ہے۔ سوری میں زیادہ تو نہیں بولتی جا رہی، بالکل آپ نے بہت اچھا زبردست انٹروڈیوس کرایا، اور ضرور میرا خیال ہے ہم اس کے ساتھ ہی اپنے دونوں مہمانان کو خوش آمدید بھی کہیں گے، انوالو بھی کریں گے۔ بہت شکریہ پہلے تو آپ دونوں کا یہاں پہ آنے کا۔
बहुत शुक्रिया आप लोगों ने इनवाइट किया। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने हमें बुलाया। अच्छा नीलम, आपने तो दोनों का बहुत एक जो ओरिजिनल तारुफ भी है और बहुत आपने फॉर्मल वे में करवा भी दिया। मैं उससे पहले इनकी दोनों की लाइफ से पहले इनसे ये पूछ लूँ कि इनमें से खाना बनाने का ज़्यादा शौक किसको है? पूछिए आप, बिल्कुल क्योंकि हम बिल्कुल आ रहे हैं, हमें सामिया ने इतनी डिटेल से ज़बरदस्त किस्म के बताया, तो आपको कोई कुकिंग का खुद भी शौक है? शौक से ज़्यादा आई थिंक यहाँ पर ज़रूरत है, क्योंकि ना फैमिली वाले हैं ना यहाँ पर कोई हाउस हेल्प है, तो आपको खाना खुद ही बनाना पड़ता है। और फिर अच्छी बात ये कि खाना बना कर प्रैक्टिस ऐसी हो जाती है कि फिर आप इवेंचुअली बहुत अच्छा खाना बनाने लगते हैं। और आपको बहुत से अच्छे रेस्टोरेंट्स हैं यहाँ पर, पाकिस्तानी और इंडियंस, यू नो, लेकिन उसके बावजूद आई थिंक जो पाकिस्तान का टेस्ट है वो आपको हार्डली किसी जगह पर मिलता है। सही है। तो मुझे ऐसे लगता है कि फिर वो जो क्रेविंग हो रही होती है ना, जब आपको एक स्पेसिफिक चीज़ की कि मुझे बिहारी कबाब खाने हैं या सीख कबाब खाने हैं या यू नो बारबेक्यू या कोई भी ऐसी चीज़, या फिर घर के टेस्ट की याद आती है, तो फिर आपके पास मजबूरी होती है कि कोई है नहीं बनाने वाला। तजर्बे जो हैं वो करने पड़ते हैं। आमिना तो मुझे काफ़ी बार इनवाइट कर चुकी हैं कि आओ, मैं बहुत अच्छा खाना बनाती हूँ, लेकिन बस वो टाइम नहीं मिल रहा। अच्छा माहीन, आप तो स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट और फिर लॉ की स्टूडेंट हैं, इतनी भारी भरकम किताबें भी पढ़ना पड़ती हैं, फिर साथ में आपकी वो एक्टिविटीज़ भी चल रही होती हैं, खाना बनाती हैं, कोई है इंटरेस्ट? बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है मुझे, बहुत शौक है खाना बनाने का। एंड एक देसी खाने भी और दूसरे कंट्रीज़ की जो डिशेस हैं वो भी बनाना मुझे बहुत पसंद है। अच्छा, माहीन से मैं इससे पहले कि आमिना की तरफ जाएं, सबसे पहले ये पूछूं कि पाकिस्तान कितनी बार जाना होता है, क्योंकि आमिना का तो मुझे थोड़ा सा पता भी है, कितना कौन सा शहर वहाँ पे सबसे ज़्यादा पसंद है, कितनी बार जाती हैं? पेरेंट्स आपको उनका पाकिस्तान के किस शहर से ताल्लुक़ है? हम लोग पेशावर से हैं, लेकिन हम लोग रहते इस्लामाबाद में हैं और बहुत ज़्यादा आना जाना लगा रहता है। इनफैक्ट मैंने काफ़ी टाइम पाकिस्तान में गुजारा भी है, डिस्पाइट बीइंग बोर्न हियर। मैं अपने हाई स्कूल के लिए पाकिस्तान चली गई थी। तो आई थिंक मेरी ज़्यादा अटैचमेंट और ज़्यादा प्यार अपने मुल्क से इसलिए भी है क्योंकि एट यंग एज मैंने वहाँ पर बहुत टाइम गुजारा। अच्छा, लाहौर जाना हुआ? लाहौर एक दफ़ा जाना हुआ। अच्छा, लेकिन सिर्फ एक ही दफ़ा। ये तो एक जब यहाँ पर दो लाहौरी, बल्कि अब तो आमना भी बिल्कुल ऐसा ही है। हाँ, 3 लाहौरिये बैठे हैं, तो ये सवाल तो पूछना बनता है इनसे। लेकिन बहरहाल ये जो जैसे माहीन ने भी बताया पाकिस्तान के हवाले से, हम शायद किसी अपने और प्रोग्राम में भी बात कर रहे थे कि पाकिस्तानी बैकग्राउंड जैसे हो, और चाहे आप यहाँ पे पैदा हुए हैं, कहीं पे भी पैदा हुए हो, पाकिस्तान से जो आपकी अटैचमेंट है वो कभी भी आपकी कमज़ोर नहीं हो पाती। बिल्कुल। आमिना, आप बताएं कि अभी आपको 5 साल हो गए यहाँ पर आए हुए, तो कभी ऐसा लगता है कि वापस जाएं या मिस करती हैं वहाँ की चीज़ें, या यहाँ के अब आप इस्टेब्लिश हो गई हैं, आपको लगता है कि नहीं ये अच्छा है, क्योंकि वेदर आपको लगता है कि गर्मी आप कहती हैं कि मुझे अच्छी नहीं लगती? मज़े की बात ये कि मैं बचपन से, क्योंकि हम लाहौर से, ऑब्वियसली आपको पता है 45 डिग्री, तो वहाँ पर बिल्कुल एक नॉर्मल सी चीज़ है समर्स में। तो मैं बचपन से गर्मी में बहुत ज़्यादा वो करती थी कि बेशक एसी लग जाए, कूलर लग जाए, कुछ भी कर ले, लेकिन उसके बावजूद जब सुबह आप रूम से बाहर निकलते हैं और गर्मी लगती है ना, तो मैं तब बहुत इरिटेट होती थी कि ऐसा कुछ हो जाए कि हम मरी शिफ्ट हो जाएं या हिल स्टेशन चले जाए, मुझे गर्मी नहीं पसंद। और ऐसा फिर हुआ कि फिर कराची जाना हुआ, 2 साल कराची में रही जियो के लिए। वहाँ पर ऐसा हुआ कि वहाँ गर्मी पूरा साल ऐसी रहती थी, सर्दियों में ठंड ही नहीं होती थी, और मैं इतनी इरिटेट होती थी कि कुछ ऐसा हो जाए कि मैं ही कहीं चली जाऊँ और तो मेरी फैमिली ने कहीं शिफ्ट नहीं होना। और फिर ऐसा होना हुआ कि हम खैर लंदन आ गए। अब मैं ऑनेस्टली समर्स में बहुत इंजॉय करती हूँ, विंटर्स में ज़रूर ऐसा होता है कि अब थक जाती है, क्योंकि तकरीबन 7-8 महीने की सर्दी पड़ती है और सनलाइट नहीं होती, और आपको विटामिन डी की कमी और हेयर फॉल और इस किस्म के जब मसले हो रहे होते हैं, तो आपको फिर याद ज़रूर आती है कि इससे बेहतर ये था कि हम थोड़ा सा पाकिस्तान रहें। और कभी मुझे फील हो रहा होता है कि इससे अच्छा 6 महीने पाकिस्तान रहा करे इंसान, 6 महीने गर्मी के यहाँ गुजार लिया करे। बिल्कुल। अच्छा आमिना, आपने जैसे जियो न्यूज़ का भी तज़किरा किया है, तो ये जो जर्नलिज्म में आपकी एंट्री हुई, इसके बारे में थोड़े हमारे व्यूअर्स को बताएं, क्योंकि ऑब्वियसली मैं आपको जानती हूँ, तो मैं हर बात में कह रही हूँ कि मैं तो जानती हूँ, लेकिन हमारे व्यूअर्स को बताएं, क्योंकि आमिना का जो फादर हैं वो भी पाकिस्तान के बहुत बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं। मैंने भी उनके साथ 92 न्यूज़ में काम किया, सीखा भी बहुत है। तो ये शौक फादर की वजह से आया या खुद ही से था? शौक से ज़्यादा आई थिंक एक इनबिल्ट चीज़ होती है, आपके घर का माहौल वैसा होता है। मेरे नाना भी क्योंकि जर्नलिज्म में थे, मेरी नानी जो थी शी वॉज अ लॉयर लाइक माहीन, और उनका भी लिखने पढ़ने से बहुत ताल्लुक था। मेरी खाला खालू, मतलब आप कह लें कि फैमिली में मेजॉरिटी जो ऑक्यूपेशन है वो यही है। बड़ी बहन है वो PTV में है और प्रोडक्शन में है।
تو سب کا یہی تھا. چچا خیر ان کی ڈیتھ ہو چکی ہے, وہ آئی تھنک 2000 اور 90s میں وہ پی ٹی وی میں پروگرامس بھی کیا کرتے تھے, تو وہ ایک انکریشن تو تھی, لیکن کوئی پلان نہیں تھا. اور میں ان لوگوں میں سے تھی جو بس پڑھائی بھی اس غرض سے کر رہے ہوتے کہ ہاں پڑھنا ہے اور دیکھیں گے لائف کہاں لے کر جاتی ہے. پہلے مجھے شوق تھا آرٹس کا, اور میں نے جب کریڈ میں تھی تو میں نے تھوڑا بہت وہ آپٹ بھی کیا, لیکن پھر پنجاب یونیورسٹی گئی تو وہاں پر لاء میں ایڈمیشن ہو گیا. اور لاء میں ایڈمیشن ہو گیا تو پھر میں نے سوچا کہ اس سے بہتر وہ ماحول اور ایک جو شور اور وہ ہوتا ہے وہ میس کمیونیکیشن کے ڈپارٹمنٹ میں تھا, اور میری بہن بھی وہاں سے پڑھی تھی. تو میں بس اس چکر میں وہاں چلی گئی کہ لاء میں بہت پڑھنا پڑے گا اور میس کمیونیکیشن میں بہت انٹرسٹ بیسڈ پڑھائی ہوگی. وہاں پہ جا کے پتہ چلا کہ پڑھائی تو ہے نہیں, اس چکر میں میتھس کا ہو گیا. کیونکہ میں بہت زیادہ ایکٹیویٹیز اسٹاف روم میں کافی بار دیکھتی تھی آمنہ, کیونکہ ہماری کلاسز تو ڈفرینٹ تھی. آمنہ بی ایس کر رہی تھی, میں ماسٹرز میں تھی. اسٹاف روم میں میں اسٹاف روم سے وہ ایک ہمارا لیڈیز کا روم ہوتا تھا, وہاں سے میں نے آمنہ کو دیکھا ہوا تھا, جانتی. بالکل. اچھا نیلم, جب دو جرنلسٹ کے ساتھ ایک تیسرا جرنلسٹ بھی موجود ہو میڈیا میں جنہوں نے اتنا زبردست کام کیا ہے, تو شاید ہم پورا پروگرام ان کے ساتھ ہی گفتگو کرتے لیکن ماہین بھی یہاں پہ موجود ہیں. ماہین, عام طور پہ جب ہم لاء اسٹوڈنٹس کو دیکھتے ہیں, چاہے پاکستان میں بھی دیکھیں, وہاں کا تو ہمیں تجربہ بھی ہے, چونکہ بہت زیادہ ان میں ایک پولیٹیکل ایکٹیویزم بھی ہوتا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ وہ جو ہیومن رائٹس کے لیے ایشوز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں. اس کے اوپر میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ آپ میں یہ ساری چیزیں بھی کیا لاء اسٹوڈنٹ جب آپ نے لاء کو ایز اے اسٹڈی اپنایا اس کے بعد سے آئیں, یا پہلے سے بھی آپ کی کچھ اٹیچمنٹ تھی؟ لیکن جواب میں لوں گا, مجھے کال آ رہی ہے کہ کچن میں ذرا پتہ کر لیں کہ ہمارا کچن کہاں تک پہنچا ہے. جی سامیہ, کیا ہمیں اپڈیٹ کریں گی کہ ہماری جو آج کی ڈشز ہیں وہ کہاں تک پہنچ گئیں؟ مکسچر اس کا جو اسٹفنگ کا مکسچر ہے بالکل ریڈی ہے. جیسے میں نے آپ کو بولا, جو سب ہم لوگوں نے یہ چکن تھا, اس کے اندر اس کے ساتھ ہم لوگوں نے کریم چیز, چیڈر چیز, تھائم, بیزل, اوریگنو ڈالا ہے. اس کے اندر تھوڑا جو بھی آپ ویجیٹیبلس ڈالیں, میں نے اس پہ پیپرز ڈالے ہیں, یلو, ریڈ اور گرین اور اورنج, اور اس کے ساتھ تھوڑا سا سویٹ کارن, اور مکسچر کے اندر ہی تھوڑا سا بالکل چیڈر چیز بھی میں نے اس کے ساتھ مکس کر لیا ہے. اور اس کے بعد جب ایک یہ آپ کی اسٹفنگ ہو جائے گی, اس کے اندر پھر اس کے اوپر آپ تھوڑا سا تھوڑا چیڈر چیز ڈالیے. اگر چاہیں تو اس کے اوپر آپ تھوڑا موزریلا بھی ڈال سکتے ہیں, اور اس کو آپ ایک پری ہیٹڈ اوون میں تقریباً 15 منٹ کے لیے رکھیں, تو یہ آپ کی گرما گرم جو ہے اسٹفڈ یوکشز ریڈی ہو جائیں گی. بہت آسان ہے یہ, کافی اب بچے بھی گھر پہ بنا سکتے ہیں. اوبویسلی اوون سے ان کو تھوڑا دور رکھیں, لیکن بالکل یہ صرف مکس کر کے اور اس کو آپ نے اوون میں ڈالنا ہے. یہ بہت ٹیسٹی بنتی ہے. اگر آپ کو تھوڑا اسپائسی چاہیے تو آپ اس مکسچر میں تھوڑا چلی سوس وغیرہ بھی ڈال سکتے ہیں, نہیں تو مجھے لگتا ہے کہ یہ بالکل اگر آپ اس کو لائٹ ہی رکھیں اور نان ایشین اسپائسیز ہی رکھیں تو یہ زیادہ ٹیسٹی بنتی ہے. چلیں, بہت خوب. پیٹیز کی یاد آ گئی نا پاکستانی اسٹائل. جی ہاں جی. ماہین کی طرف واپس آتے ہیں. ماہین, یہ پھر لاء کی وجہ سے ہی سارے کمالات آنا شروع ہوئے, یا کیا کہاں سے شروع ہوا یہ ایکٹیویزم کا سفر؟ مجھے لگتا ہے کہ میں بچپن سے بہت زیادہ ووکل رہی ہوں, اور مجھے شروع سے پتا تھا کہ آئی ڈنٹ نو کہ میں لاء کروں گی, لیکن مجھے پتا تھا کہ میں جو بھی کروں گی اس میں نے آواز اپنی یوز کرنی ہے کسی ایسے پرپز کے لیے جس میں لوگوں کی مدد کر سکوں. اور آئی تھنک فرسٹلی اٹ واز ان پولیٹیکل ایکٹیویزم. اٹ اسٹارٹیڈ اس طرح کہ بس ہر ناانصافی کے خلاف آواز اٹھانا. جس بندے کو ایک پلیٹ فارم کی ضرورت ہو اس کو اپنی آواز کو ایک پلیٹ فارم کی طرح یوز کرنے دینا. اینڈ دین آئی تھنک ایک محب وطنی بھی اس میں آ جاتی ہے. آئی ایم سو کریزی اباؤٹ پاکستان. مجھے اتنا پیار ہے اپنے ملک سے کہ اس طرح کے اس ٹائم پہ جو حالات ہیں وہاں پر وہ خود ہی ایک طرح سے سیاسی فارمیٹ میں چلے گئے ہیں, ورنہ میرا پولیٹیکل ایکٹیویزم کی کوئی انٹینشنز نہیں تھی. اور یہ برا بھی نہیں ہے اگر آپ اپنے ملک کے لیے سوچنا, اور ایون آگے بڑھ کے کسی جس کاز کے ساتھ آپ مخلص ہیں, جس کو آپ سمجھتے ہیں, اس کے لیے پھر پریکٹیکلی کچھ عمل بھی کرنا. کیونکہ ہم بہت اب تو دیکھتے ہیں پولیٹیکل ایکٹیویزم سے بھی زیادہ شاید سوشل میڈیا ایکٹیویزم تو ہے, اس میں لوگ جس کاز کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے, لیکن وہ اپنے کمبل میں گھس کے ایک ٹویٹ کر دی, میسج کر دی, لیکن یہ تو بہت دل جگرے کی بات ہوتی ہے کہ آگے آنا اور خود آپ پریکٹیکل بھی اس میں جانا. تو ماہین, کبھی پیرنٹس نے نہیں کہا کہ اتنا ووکل ہو رہی ہو, کوئی پرابلم ہو سکتی ہے, یا کچھ اس طرح سے انہوں نے کوئی کہا کہ پریشرز آ رہے ہیں تو تھوڑا اتنا نہ بولا کرو؟ کیونکہ میں نے آپ کو دیکھا آپ کافی ہر ایشو پہ اپنی آواز اٹھاتی ہیں. آئی تھنک
इनिशियली जब आप किसी चीज़ के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाते हो ना, किसी नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़, तो आई गेस सबसे पहले तो हमारा दीन भी हमें ये सिखाता है कि नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ आपको आवाज़ उठानी चाहिए। तो तब तक तो मेरे पेरेंट्स बहुत ज़्यादा सपोर्टिव थे और अब भी हैं, लेकिन रिसेंटली जो टर्न ऑफ इवेंट्स हुए हैं और जिस तरह से आवाज़ उठाने पर सिचुएशंस दिखाई गई हैं, उस वजह से मेरे पेरेंट्स ने मुझे थोड़ा सा कहा कि पाकिस्तान जाना होता है थोड़ा सा लेकिन माहीन को मैंने देखा है कि माहीन बड़े अच्छे अंदाज में आवाज़ उठाती हैं कि तनकीद करने का भी एक अंदाज होता है, एक मुस्बत अंदाज होता है कि आप तनकीद भी कर लें और उसमें किसी कोई गाली भी शामिल ना हो, कोई लफ्ज़ बात भी ना हो। तो माहीन का बड़ा एक मैच्योर, वो एक लॉयर्स वाला जो है अंदाज होता है। आमिना, आप खुद भी बहुत वोकल हैं, मैंने आपको देखा है कि हर इशू पे आपका ट्वीट भी आता है और फिर आप ट्विटर स्पेसेस में मुख्तलिफ जो इश्यूज़ होते हैं इसके ऊपर बात भी करती हैं। तो अब जर्नलिज्म के बाद, टीवी जर्नलिज्म के बाद, ये जो सोशल मीडिया अवेयरनेस वाला जो आपका करियर है, ये कैसा जा रहा है, कैसा लगता है? मैंने इसको ऑप्ट नहीं किया था एज अ करियर। मैं बिल्कुल चली गई थी मीडिया छोड़ने के बाद। इवन सोशल मीडिया में भी मेरी प्रेजेंस ऐसी नहीं थी। लेकिन अब ये जो जैसे माही ने कहा कि ये रिजीम चेंज के बाद से सिचुएशन हो गई, उसमें आई थिंक इवेंचुअली सभी लोग जो पाकिस्तान से प्यार करते हैं, एग्जैक्टली, वो ना चाहते हुए भी वो पॉलिटिकली इन्वॉल्व हो गए हैं सब में। और अगर किसी भी मौजू पर बात करें पाकिस्तान में, महंगाई पर या सोशल इश्यूज़ पर, माइनॉरिटीज़ पर, लोगों के जितने भी मसाइल हैं, उसमें पॉलिटिक्स ही इन्वॉल्व है। उसमें वो सब घूम फिर कर वहीं आती है कि पॉलिटिकल सिचुएशन जो है वो किस तरफ लेकर जा रही है, क्या फ्यूचर है पाकिस्तान का, यूथ का क्या फ्यूचर है। बल्कि जो जनरेशन रह रही है पिछली कई दहाइयों से, अब वो भी क्वेश्चन कर रही हैं अपने फ्यूचर को, क्योंकि हालात हो चुके हैं क्वेश्चनेबल। तो आई थिंक लास्ट ईयर से ही मैं एक्टिव हुई दोबारा और वहाँ पर आवाज़ उठानी शुरू की और लोगों ने बहुत अप्रिशिएट भी किया, लोग मिस भी करते थे और बड़ा अच्छा रिस्पांस आया। और मुझे खुद भी एहसास हुआ कि आपको जब आप बोल सकते हैं और लोग सुन रहे हैं, लोग देख रहे हैं और लोग चाहते भी हैं कि आप इन्वॉल्व हो, तो आपको ज़रूर बोलना चाहिए। जैसा माहीन ने कहा कि आपको वोकल होना चाहिए और इसमें कोई ख़राबी नहीं है। और मुझे कई बार कहा जाता है मेरे घर की तरफ से कि तुम मत किया करो कई ट्वीट्स या फिर इतना ज़्यादा वोकल मत हो, क्योंकि ऑब्वियसली आपको पता है कितनी प्रॉब्लम्स आपकी फैमिली को भी फेस करनी पड़ती है exactly. लेकिन उसके बावजूद आप नहीं रह सकते अगर आप पाकिस्तान से प्यार करते हैं। और वैसे भी एज अ मुस्लिम आई थिंक सबसे पहला आपका फ़र्ज़ ये है कि आप देख रहे हैं आपके बहन भाई, आपके घर वाले, आपके वतन वाले मुश्किल में हैं और आप कुछ नहीं कर सकते, आप बोल तो सकते हैं। एग्जैक्टली। अच्छा, ये तो हो गई बड़ी सीरियस सी गुफ्तगू। अब थोड़ा, क्योंकि जोक सुनाएंगी अब हमें? नहीं, अब खवातीन बैठी हैं, लड़कियां हैं, तो अब थोड़ी लड़कियों वाली भी हम बातें कर लें। तो एक सवाल है मेरे पास, माहीन से शुरू करते हैं। माहीन, कितनी ईदें यहाँ पर गुजारी हैं? पाकिस्तान में जो ईद होती है, यहाँ की ईद क्या डिफरेंस है? यहाँ पे क्या किसी फ्रेंड्स के घर जाते हैं, गेट टुगेदर होते हैं, क्या खाने होते हैं, कैसी ईद होती है यहाँ की? क्योंकि मैं यहाँ पर पैदा हुई थी तो मेरी काफ़ी ईदें इधर गुजरी हैं, लेकिन एज आई सेड मैं पाकिस्तान रहने भी गई थी और काफ़ी ईदों पर भी हम पाकिस्तान जा चुके हैं। जो पाकिस्तान की ईद है उसका कंपैरिजन ही नहीं है यहाँ की ईद से। पाकिस्तान की तो बात ही और है, लेकिन यहाँ पर मेरी दादा दादी होते हैं तो अक्सर हमारी ईद उनके साथ गुजरती है, तो वो थोड़ा सा एक पाकिस्तान की वाइब आ जाती है, लेकिन पाकिस्तान तो नहीं ना आ सकता। सही। तो वो मेहंदी लगवाने तो जाती होंगी चांद रात को, ये इल्फर्ड लेन पर ही हम लोग जाते होते हैं और मेहंदी लगवा ली, या कोई कज़न्स हो गए या कोई और रिलेटिव्स हो गए जिनको मेहंदी लगाने आती है, सब चांद रात पे इकट्ठे हो गए, बस एक वाइब बनाने की कोशिश ही जारी रहती है। अच्छा आमना, आपके यहाँ पे रिलेटिव्स हैं? क्योंकि ठीक है आपके हस्बैंड है, आपकी माशाल्लाह से बेटी है, बड़ी प्यारी सी क्यूट सी, जो आप कहती हैं बड़ी शरारती है, जो कि मुझे नहीं लगती शरारती। तो उसके अलावा मैं आपको बता उसके अलावा मतलब ईद पे क्या होता है कि कहीं जाना है, क्या आई थिंक अब बड़ी और छोटी ईद मिला के कोई 8 ईदें तो मैंने यहाँ पर गुजार ली हैं। और बड़ी ईद पर कुर्बानी भी मिलके हम यहाँ करते हैं ताकि ईद की वाइब आ सके, और उसके बाद वो गोश्त बांधना और रान रोस्ट और उसके जितने पकवान है वो कोशिश करते रहते हैं। लेकिन उसके बावजूद ऑब्वियसली पाकिस्तान वाली फीलिंग इसलिए नहीं आ पाती कि यहाँ पर गोश्त बांटने के लिए घर और लोग आपको ढूंढने पड़ते हैं। पाकिस्तान में आपको घर बैठे पता होता है कि कोई लेने आ जाएगा, रिश्तेदार हैं, ये है वो है। लेकिन फिर भी कोशिश तो पूरी करते हैं कि अब जहाँ पर रह रहे हैं उसको ही अपना वतन बनाएं। डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। छोटी ईद पर जैसे पाकिस्तान में गहमा गहमी और बाजार, और आपको पता है लाहौर में तो करीम ब्लॉक हो, मून मार्केट हो, लिबर्टी हो, जो 10 दिन होते हैं वो तो फिर ट्रैफिक, अनारकली भी वो जो सबसे मशहूर अनारकली वगैरह, तो आई थिंक एक ऐसा भी
सेक्टर है जिसने जाना ही बंद कर दिया है, क्योंकि वहाँ पर एंटर होना ही ना मतलब पॉसिबल ही नहीं अच्छा होता। नीलम और आमना, यहाँ पे 3 खवातीन सेट पे मौजूद हैं, लेकिन किचन का ध्यान मुझे ही रखना पड़ रहा है। एक दफ़ा फिर किचन रेडी है, तो मेरा ख्याल है चलते हैं सामिया की तरफ। जी सामिया। जी, हमारा यॉर्कशायर पुडिंग्स इस वक्त अवन में है, उनको तकरीबन 10 से 12 मिनट लगेंगे बनते हुए, क्योंकि वो स्टफिंग तो सारी ऑलरेडी कुकड है, लेकिन वो जो हम लोगों ने चीज़ेस वगैरह डाले हैं वो मेल्ट होके और वो जो आउटर उनका यॉर्कशायर्स का लेयर है वो थोड़ा क्रिस्पी हो जाए। तो आज हम लोग दूसरी आइटम जो हम लोग बना रहे हैं वो है सैंडविच प्लेटर। अगेन काफ़ी बच्चों को शौक़ होता है और कुछ लोग इत्तेकाफ़ बैठे होते हैं, तो जल्दी जल्दी चीज़ें जो आपको फिल भी कर दें और जल्दी भी बन जाएं, उसके लिए हम लोग 3 डिफरेंट स्टफिंग्स आज बनाएंगे। पहला होगा ऑब्वियसली एग सैंडविचेस, दूसरा हम लोग बनाएंगे चिकन एंड स्वीट कॉर्न सैंडविचेस, और तीसरा हम लोग बनाएंगे ट्यूना मेयोनेज़। सो इसमें अगेन आप जो भी डालना चाहें आप मिक्स कर सकते हैं, लेकिन अगर जैसे ट्यूना मेयोनेज़ में जो मैं आज डाल रही हूँ टिन ट्यूना, जब आप टिन ट्यूना लें तो ये ध्यान रखें कि आप जो है वो इन ऑयल नहीं लें, वो ग्रीसी हो जाता है। आप नॉर्मल ट्यूना को बेक भी कर सकते हैं, आप उसको ओवन में भी बना सकते हैं या स्टीम भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे टिन्ड ट्यूना लिया है। उसके अंदर मैं डालूँगी बिल्कुल बारीक कटे हुए पेपर्स, और उसके साथ सीजनिंग जो हम लोग डालेंगे क्रीम चीज़, और उसके साथ थाइम, बासिल, ओरिगनो, और उसके बाद जो चिकन एंड स्वीट कॉर्न की सैंडविचेस हैं उसके अंदर हम लोग मेयोनेज़ डालेंगे, स्वीट कॉर्न डालेंगे, और उसके साथ आप प्लेन मेयोनेज़ भी यूज़ कर सकते हैं, गार्लिक मेयोनेज़ भी यूज़ कर सकते हैं, कि आपकी टेस्ट पे डिपेंड करता है, लेकिन मुझे प्लेन मेयोनेज़ इसके साथ ज़्यादा अच्छी लगती है, सो मैं प्लेन यूज़ करूँगी। और उसके बाद हम लोग एग सैंडविचेस बनाएंगे। अगेन एग सैंडविचेस में हम लोग ब्लैक पेपर डालेंगे और मेयोनेज़ डाल के उसको मिक्स करेंगे, और ये इंशाल्लाह बहुत जल्द 5-6 मिनट में बन जाता है, क्योंकि मेन चीज़ है कि आपके इंग्रेडिएंट्स सब हों और ये सिर्फ मिक्सचर और असेंबली है। सामिया की मुझे ये चीज़ नहीं समझ आती कि सामिया जो इतनी फ्लुएंसी से पूरी रेसिपी की इंग्रेडिएंट्स बता रही होती हैं, अगर मैं हूँ, खैर मैं तो कभी हुई ही ना अपने आप को मैं एक्सपर्ट कहना भी ना चाहूँ, लेकिन मैं भूल जाऊँ कि पहले अच्छा मैंने सॉल्ट डालना था। मैं तो अगर यूट्यूब से भी कोई रेसिपी देखती हूँ तो बार बार मुझे उसको बैक करके देखना पड़ता है। सामिया का जो है ना मेमोरी बहुत, इसीलिए तो सामिया जो है वो इस्लाम चैनल उर्दू पे हर दिल अजीज़ प्रोग्राम्स जो हैं वो दे रही होती हैं। सामिया बिल्कुल हमें ब्रेक की तरफ भी जाना है। आप कुकिंग तो कर रही हैं, हमारे लिए मज़े मज़े की रेसिपीज़ भी बना रही हैं, लेकिन बिल्कुल जो रमज़ान के आखिरी 10 दिन स्टार्ट हो रहे हैं और उसके बाद यकीनन ये जो 10 दिन है वो ईद की तैयारी में गुजर जाते हैं, तो खाने के अलावा भी कुछ ईद की तैयारी आपकी शुरू हो गई, इन प्रोसेस है, या आप रमज़ान से पहले ही कर लेते हैं? सितारों वाला दुपट्टा तो पहन लिया नहीं, ऑब्वियसली मेरे 3 बच्चे हैं, तो हम लोग के घर में ईद की तैयारी रमज़ान से पहले शुरू हो जाती है, और वो ईद गिफ्ट की लिस्ट और ईद पे कहाँ जाना है, क्या करना है, किसको कितनी ईदी चाहिए। और आजकल बच्चे इतने तेज़ हो गए, न्यूज़ पे कुछ इन्फ्लेशन और कॉस्ट ऑफ लिविंग की बात हो रही थी, तो मेरे बच्चे मुझे फ़ौरन बोलते हैं कि मम्मी ये आजकल बहुत इकोनॉमिक क्राइसिस है, तो हमारी ऑब्वियसली ईदी भी उसी रेंज से बढ़ेगी कि नहीं। सो हम लोग के घर में ईद की तैयारी रमज़ान से भी पहले शुरू हो जाती है। वो इतना अच्छा खाना खाते हैं ना, इसलिए मुझे लगता है इतने वो हाजिर जवाब हो गए, उनका दिमाग ज़्यादा चलना शुरू हो गया। और यकीनन जो हो सकता है सामिया ने ये जवाब दिया हो कि कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस की वजह से कट लगेगा, जैसे मुख्तलिफ जगहों पे बजट पे कट लग रहा है। तो नाज़रीन, प्रोग्राम जारी है, हमारी जो रमज़ान ट्रांसमिशन रहमत रमज़ान है वो जारी है। बिल्कुल वक्त हुआ चाहता है एक ब्रेक का, ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, गुफ्तगू का सिलसिला भी इसी तरह से चलता रहेगा, और जो किचन की सरगर्मियाँ हैं वो भी इसी तरह से चलती रहेंगी। देखते रहिए इस्लाम चैनल उर्दू। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले कुछ ईद की तैयारियों की भी बात हो रही थी, आमिना को जो जर्नलिज्म का करियर है उसकी भी बात हो रही थी, वहीं से मैं कंटिन्यू करना चाहूँगी, क्योंकि वो करियर ऐसा होता है कि उसमें इतने उतार चढ़ाव, रंगीनियाँ और पता नहीं क्या कुछ होता है, हैपनिंग्स होती हैं उसमें। तो आमिना कोई अच्छी यादें स्टूडियोज़ की, कोई ऐसी मज़े की बात, कोई शरारत, कोई हंसी आ गई हो लाइव न्यूज़ करते हुए, कोई है ऐसा कोई वाक़या? हंसी तो बहुत आती थी और मैं तो हंस पड़ती थी, मतलब मुझे कंट्रोल नहीं है हंसी पर। और
आप बल्कि स्पेसेस की भी बात करी थी ट्विटर की, तो पॉलिटिकल स्पेसेस से ना हम थोड़े टाइम बाद ही थोड़ा बंदा बोर हो जाता है, तो हम लोग रोज पाकिस्तानी काफ़ी एंकर्स वगैरह, मैंने आपको भी उस दिन ऐड किया, हम लोग एक हंसी मजाक की स्पेस वैसे ही करते रहते हैं। तो वो न्यूज़ पे भी ऐसा होता था कि न्यूज़ पढ़ते हुए फंबल हो जाता है, और फंबल पे बजाय इसके कि दूसरा से मैं खुद ही हंस पड़ती थी। क्वेश्चंस भी ऐसे फनी होते थे क्योंकि इनिशियली आपको नहीं पता होती, डिटेल्स नहीं पता होती, बैकग्राउंड नहीं पता होता। तो आई थिंक दुनिया टीवी में थी मैं, और नाइट शिफ्ट में थी, और आई थिंक 1 या 2 महीने हुए होंगे मुझे ऑन एयर हुए। और ये हुआ कि रात के 3 बजे रिपोर्टर को कॉल करनी थी, और ब्रेकिंग न्यूज़ थी कि थाना रेस कोर्स की हदूद से 31 लोग गिरफ्तार हो गए। अब मुझे नहीं पता था कि मुझे अब इस पे किस तरह से कंटिन्यू करना है, रिपोर्टर से क्या क्वेश्चन करना है। तो मैंने रिपोर्टर से क्वेश्चन कर दिया कि रात के 3 बजे 31 लोग रेस कोर्स पार्क में क्या कर रहे हैं। अब वो रिपोर्टर को ऑब्वियसली ही नोज बेटर, तो उसने कहा कि ये थाना रेस कोर्स की हदूद में पूरा इलाका आता है, इसमें सिर्फ रेस कोर्स पार्क नहीं आता, जो ज्यादातर लाहौरियों को लगता है कि रेस कोर्स का मतलब है रेस कोर्स पार्क। तो ये आई थिंक बहुत फनी इवेंट था, और उसके बाद होते रहते थे। जैसे एक दफ़ा मैं एक एंकर के साथ बैठी बुलेटिन कर रही थी, जियो की बात है, और क्योंकि आपको पता है IFP में आप PCR से आवाज़ आ रही होती है और आपको डायरेक्शन भी मिल रही होती है, एग्जैक्टली। तो उसमें ब्रेकिंग न्यूज़ थी, और हम लोग क्योंकि दोनों दोस्तें बैठी थी और हम बहुत हंस रहे थे, बात पे हंस रहे थे, तो ब्रेकिंग न्यूज़ आई कि सड़क को ब्लॉक कर दिया गया और उस पर एहतजाज हो रहा है। अब मैंने अपनी वो दोस्त को इतना हंसाया कि उसने गलती से बोल दिया कि सड़क को हलाक कर दिया है। ये इंटरेस्टिंग। अब वो मैं हंसी कंट्रोल कर दी या वो हंसी कंट्रोल कर दी, और इतने में वो पैनल वाले थे वो भी हंसना शुरू हो गए, और सिचुएशन ऐसी हो गई थी कि उस बेचारी ने 3-4 बार ये रिपीट कर दिया। अच्छा, मुझे दुनिया टीवी का एक क्लिप याद है, आपने भी काम किया दुनिया टीवी में, कि वो एक बच्चे से बीपर ले रहे थे, तो वो मौसम की कोई बारिश की खबर चल रही थी, तो बच्चे से कहा कैसा लग रहा है आपको, तो उस बच्चे ने एंड में कहा कि आप ही मुझे ऊपर से लेके आए, तो बात भी नहीं करना चाह रहा। तो बच्चे मन के सच्चे। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा नीलम, बात चूंकि चल ही पड़ी है, आपके साथ कभी ऐसे हुआ खास तौर पे जब PCR वाले दरमियान में वो लुकमे देते हैं, तो उनके उन लुकमों की वजह से, उनके उन जो चुटकुलों की वजह से कभी हंसी निकल गई हो? मैं तो उसको फिर अपना अंदाज बना लेती, मैं फिर उसको ऐसे ढिठाई से ये शो करती थी कि ये मैं नेचुरल हंसी हंस रही हूँ, मतलब ये जरूरत थी यहाँ पे हंसने की। तो खैर वो हमें मैनेज तो करना ही पड़ता है किसी ना किसी तरह। अच्छा माहीन, आप पाकिस्तानी चैनल्स देखती हैं, न्यूज़ देखती हैं, ड्रामे देखती हैं, कितना देखना होता और है? क्रिकेट देखती हैं? सबसे इम्पोर्टेंट वो सवाल। तो देखती हूँ जी ऑफ कोर्स, कौन पाकिस्तानी है और क्रिकेट नहीं देखता। यस मैं सारे चैनल्स देखती हूँ, ड्रामास भी देखती हूँ, और आजकल तो न्यूज़ ही चलती रहती है ऑन रिपीट। सही, और न्यूज़ में भी काफ़ी ड्रामा चलता रहता है। न्यूज़ खुद एक ड्रामा है, बल्कि मैं तो समझती हूँ जितने सहाफ़ी और जितने भी लोग हैं, मैं उनको देखकर सोच रही होती हूँ आप कैसे एक बात बार बार रिपीट किए जा रहे हो और फिर बदल भी रहे हो आप उसके बाद। और आजकल ड्रामों की भी न्यूज़ चलती रहती है। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा वैसे कौन से एक्टर्स एक्ट्रेसेस पाकिस्तान के अच्छे लगते हैं, या आजकल कोई ड्रामा फॉलो कर रही हूँ हमारे व्यूअर्स से शेयर करना चाहें? आई थिंक आजकल तो मैं कोई पाकिस्तानी ड्रामा एज सच फॉलो नहीं कर रही, लेकिन आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट पाकिस्तानी ड्रामाज जो मैं हमेशा याद करती हूँ, इट्स हमसफ़र। आई रियली लाइक दैट ड्रामा, एंड आई फील लाइक अक्सर रमज़ान में या कोई ऐसा टाइम आता है ना जब वो रिप्लेस दिखाते हैं ड्रामों के, सो इट्स माई फेवरेट जब हमसफ़र आता है। एंड एक्टर्स, रिसेंटली बुशरा अंसारी वाज हियर विद हर सिस्टर, एंड आई थिंक उन्होंने जिस तरह से क्राउड को एंगेज किया ना, और जिस तरह वो अपनी मेमोरी शेयर कर रहे थे, आई फील लाइक ओल्ड इज गोल्ड, एंड दोज आर सम ऑफ द बेस्ट Legends हैं वो। नीलम, माहीन ने तो अपने दौर का ड्रामा हम सफ़र जो है, और यकीनन वो तो आपको अनकही की याद आ गई? नहीं, अनकही के थोड़ा बाद जब धुआं, हमारा ज़माना धुआं वाला था, अनकही वगैरह तो फिर अल्फा ब्रावो चार्ली, अल्फा ब्रावो चार्ली, धुआं, अंगारवादी और इस तरह के जो ड्रामे थे, और यकीनन वो अच्छा रिसेंटली भी एक ड्रामा बड़ा फेमस हुआ था, मैं और आमिना दोनों मिलके देख रहे होते थे, मतलब हम उस पे अपने तज्जिए भी आके सोशल मीडिया पे दे रहे होते हैं। उसका नाम भी अब मेरे हमसफर, मतलब उसमें भी हमसफर आ रहा था। तो आजकल भी कोई चल रहा है ऐसे? आजकल आई थिंक ज़्यादातर ड्रामे जो चल रहे हैं वो कंट्रोवर्शियल ज़्यादा हो गए हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वही टॉक्सिक उन्होंने स्टोरीज डाल दी हैं, फिर वो पैमरा की तरफ से बैन आ जाता है कई सीन्स पर, कभी पता चलता है कि स्टोरी लाइन इतनी ज़्यादा
आई डोंट नो व्हाट टू से कि कंट्रोवर्शियल हो गई है, फिर उसमें कोई कह देता है जी ये अमेरिका का एजेंडा शामिल है, इतनी ज़्यादा चीज़ें चलती रहती है। तो ड्रामाज में देखती रहती हूँ, 2-3 ड्रामा ज़रूर देखती हूँ, बट मुझे लगता है कि वो ड्रामाज जो है ना इंटरटेनिंग से ज़्यादा कंट्रोवर्शियल ज़्यादा बना दिए हैं। शायद उनका अपना वो टीआरपी के लिए स्टंट होता है या आई डोंट नो, लेकिन कोई एक आधा ड्रामा जो बहुत फैसिनेटिंग सा या आपको वही ओल्ड स्कूल रोमांस वाला होता है, आई थिंक एट द एंड ऑफ द डे हम वही देखना चाहते हैं। वो देखना भी हम नहीं पसंद करते जिसमें आप बहुत ही ज़्यादा सीरियस और सनसनीखेज सा कोई टॉपिक छेड़ देते हैं, क्योंकि न्यूज़ में, टीवी पर हर वक्त इतनी ज़्यादा ये चीज़ देखी जाती है कि एंटरटेनमेंट के लिए हमें एक लाइट और एक रोमांटिक या फिर एक सोशल इशू पर भी कोई हो तो वो एक सीरियस या सेंसिबल चीज़ चाहिए, उसमें आपको सेंसुअल चीज़ नहीं चाहिए होती। आई थिंक इस रमज़ान अगर मैंने कोई चीज़ मिस की है तो इट्स सोनो चंदा। जब सोनो चंदा आता था ना रमज़ान में, ऐसा एक लाइटर नोट पे कॉमेडी स्टाइल ड्रामा, तो आई फील लाइक हम सारी फैमिली एक साथ बैठकर भी देखती थी। और एक थोड़ा बल्कि रमज़ान में ही जब पाकिस्तान में वो अर्तुगरुल को भी लॉन्च किया गया और उसका भी बहुत जो लोगों में था वो क्रेज़ पैदा हुआ। और फिर आप दोनों ने देखा है? हमारे घर पे इतना ज़्यादा क्रेज़ था उसका कि मेरी बेटी उसी में पैदा हुई और मेरे मियाँ और मैंने उसका नाम हलीमे रख दिया। और आपकी बेटी का नाम हलीम है? मुझे नहीं पता था। एग्जैक्टली और बस वो इतना ज़्यादा हम उस पर एक्साइटेड थे। और बल्कि अभी भी रमज़ान में मेरे जो हस्बैंड है वो बैठ के वो उस्मान गाजी देखते रहते हैं, क्योंकि वो कंटिन्यूटी में कि रमज़ान है तो मैंने वही देखना है। और आई थिंक माइंडसेट ये होता है कि कोई चीज़ अच्छी देखनी है ना तो इस किस्म की चीज़ देख ली जाए जिसमें इस्लामिक हिस्ट्री भी शामिल है। बिल्कुल। अच्छा, इस्लामिक हिस्ट्री से याद आया, चूंकि अब रमज़ान भी चल रहा है और आखिरी अशरा हम सबके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, फिर इसमें 27वीं शब भी आती है। तो यहाँ पे क्योंकि लंदन की फास्ट लाइफ में लोग कहते हैं कि हमें मौका नहीं मिल रहा सही इबादत करने का, तो मिलता है टाइम कुछ ज़्यादा इबादत करने का, कुछ रमज़ान के ये जो ब्लेसिंग्स हैं इनको लेने का? जो लास्ट 10 डेज होते हैं ना, आई फील लाइक उनकी इतनी बरकत होती है और उनकी इतनी स्टोरीज हमने सुनी होती हैं, एंड टू कैच दैट नाइट ना, तो उसमें ये होता है कि बंदा खुद टाइम बनाता है। आई मीन फॉर मी, मेरे दिमाग में होता है कि मुझे रमज़ान में एक कुरान ख़त्म करना है, तो हर दिन मुझे एक जुज़ अपना पूरा पढ़ना होता है। तो उसमें ये होता है कि लास्ट 10 नाइट्स में तो आपको ये भी होता है, एंड आई थिंक इस्लाम चैनल का एक नोटिफिकेशन भी आता है कि प्रिपेयर फॉर लास्ट 10 नाइट्स एंड चैरिटी सेटअप कर दो एंड स्टफ। सो आई फील लाइक हम लोग बेशक एक बिजी होते हैं अपनी लाइफ में, लेकिन बहुत सी सहूलतें हमें भी दी गई हैं और रिमाइंडर्स दिए गए हैं, एंड आई फील लाइक यहाँ रहकर वी हैव मोर टाइम उन 10 नाइट्स को वेल करने का। आई फील लाइक पाकिस्तान में चांद रात की तैयारियां 10 रातें पहले ही शुरू हो जाती हैं, फेस्टिविटी शुरू हो जाती है, फेस्टिविटी शुरू हो जाती है। एंड आई थिंक वहाँ पर फैमिली भी होते हैं, फ्रेंड्स भी होते हैं, ज़्यादातर करीब लोग होते हैं, तो आप उसमें थोड़ा बिजी हो जाते हो। यहाँ पे है कि आप थोड़े आइसोलेटेड होते हो, और सबसे बड़ी बात ये कि जो परसेंटेज है लोगों की जो इत्तिकाफ़ पे बैठते हैं यहाँ पे, इट्स इनसेन। आई थिंक इट्स अमेजिंग। आमिना, आपका कैसा जाता है? मुझे वैसे ओवरऑल लगता है कि पाकिस्तान में जो नफली इबादत है, जैसे मुझे याद है कि 100 नवाफिल हम अदा कर लिया करते थे ताक रातों पर, वो नहीं हो पाता क्योंकि ऑब्वियसली मेरी तो खैर बेटी भी छोटी है। और आई थिंक यहाँ पर वाकई में आप पर जिम्मेदारी होती है घर की, अपनी 100 इस तरह के काम और एक्टिविटीज़ होती है कि वो पॉसिबल नहीं होता। लेकिन जो चीज़ मुझे अच्छी लगती है और जो डिफरेंस भी फील होता है और दुख भी होता है इस बात का कि यहाँ पर जो पेशेंस है, टॉलरेंस है, और नॉट जस्ट ड्यूरिंग रमज़ान, वैसे भी ओवरऑल पूरा साल है। और ये चीज़ हम गोरों से सीखते हैं और उनकी वजह से प्रैक्टिस करते हैं। और रमज़ान में वो ठहराव सब मुसलमानों में देखा जाता है, पाकिस्तान में भी ऐसा होता है, लेकिन स्टिल आई थिंक पाकिस्तान में स्ट्रेस लेवल्स इतने हाई होते हैं और इतना जल्दी होती है सब लोगों को, यहाँ पर वो चीज़ नहीं है, यहाँ पर वो जल्दी नहीं है। उसकी वजह से वो ठहराव तो हम प्रैक्टिस करते ही रहते हैं, लेकिन रमज़ान में आई थिंक रोज़े की वजह से कुछ आपके ब्लड प्रेशर भी इन कंट्रोल होता है और उसकी वजह से वो गुस्सा नहीं आ रहा होता, वो फ्रस्ट्रेशन नहीं निकल रही होती, वो जो आपको लगता है ना कि आपके मुंह से कोई गलत बात निकल आएगी, आप गुस्से में किसी को कुछ कह देंगे, वो नहीं हो पाता। तो वो आई थिंक मैं यहाँ पर ज़्यादा फील करती हूँ और ज़्यादा रिलैक्सेशन भी होती है। आपको कोई कुछ कह नहीं रहा तो ऑब्वियसली आपको गुस्सा भी नहीं आ रहा, आप रिएक्शन भी नहीं दे रहे। पाकिस्तान में आई थिंक अभी भी इवन ड्यूरिंग रमज़ान भी वो चीज़ उतनी नहीं होती है, होती भी है तो ईद तक होती है और ईद के बाद फिर शैतान खुला छोड़ दिया जाता है और लोग वही गुस्से में वापस और वही एक्टिविटीज़ और वही एक दूसरे को तुमने ये किया और चुगली और गिबत, वो सब कुछ होता है। यहाँ पर वो चीज़ें नहीं है। अच्छा माहीन, मुझे ये बताएं कि यहाँ पे रहकर पाकिस्तान की जो आपको बहुत सारे इस वक्त स्टूडेंट्स भी देख रहे होंगे, अभी तो आपको पता है ना 22 में और 23 में सबसे ज़्यादा पाकिस्तानी स्टूडेंट्स यहाँ पे आ रहे हैं, किस तरह से पाकिस्तान की खिदमत की जा सकती है या रिप्रेजेंट किया जा सकता है, क्या ऐसे मौके हैं, किस तरह से इंगेज कर सकते हैं वो मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ में? आई थिंक
سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ان مائی ہیڈ ویئر آل ایمبیسڈرز آف پاکستان. جب ہم کہیں باہر چلتے ہیں نا تو ہمیں لائک یہاں پر تو اکثر پیپل سے ویئر آر یو فرام, اٹس دا فرسٹ کنورسیشن اسٹارٹر. تو آپ کو ہوتا ہے کہ مجھے تو ہوتا ہے آئی ایم فرام پاکستان, اور مجھے بڑا فخر ہوتا ہے یہ کہتے ہوئے. آئی تھنک جو یہاں پر یوتھ جو یہاں اوورسیز پاکستانیز ہیں اور جو وہاں سے بھی آئے ہیں یہاں پہ, آئی تھنک اسٹے ووکل, اپنے ملک کو بھولنا نہیں ہے جہاں سے آپ ہو. ہر جگہ اس کا نام لائک لو. فار ایگزامپل ٹرکی میں جب ارتھ کوئک آیا تھا تو آل آف دیز پاکستان سوسائٹیز آف دی یونیورسٹیز ہم سب نے اکٹھے ہو کر ہم لوگوں نے چیریٹی کے وہ کیے تھے, لائک ٹرانسمیشنس کی تھیں, فنڈ ریزرس کیے تھے, کلیکشنس رکھی تھیں, تاکہ ہم لوگ کا ایک ہمارا اپنا نہیں تو ہمارے ملک کا نام آ سکے. پاکستانی اسٹوڈنٹس نے کیا. جسٹ اسٹے افیلیٹڈ ود آپ کی یونیورسٹیز کی جو پاکستانی سوسائٹیز ہیں, اینڈ جو بھی آپ کو پلیٹ فارم ملے, بڑے ایونٹس ہوتے ہیں, دیسی کمیونٹیز اکٹھی ہوتی ہیں, بس اپنے پاکستان کا جو نام ہے نا وہ لیتے رہو. اچھا, مجھے ماہین کی سب سے اچھی بات, چونکہ ہم نے وہ جب اسٹارٹ کی تھی ٹرانسمیشن, ماہین نے ہمیں بتایا کہ وہ اپنا لا کمپلیٹ کرنے کے بعد پاکستان جانا چاہتی ہیں, جو کہ بہت کم اسٹوڈنٹس ہیں. اور یہ انفارچونیٹ بھی ہے کہ ہمارے اسٹوڈنٹس کہتے ہیں کہ نہیں, اب ہم آ گئے ہیں تو ہم یہیں پہ کچھ سال 10 سال اور یہیں پہ رہنا چاہتے ہیں. لیکن ماہین کے اندر, ماہین یہ جذبہ کیسے آیا؟ آئی گیس ہائی اسکول, میں نے آپ کو کہا نا کہ میں ہائی اسکول کے لیے پاکستان چلی گئی تھی, تو وہاں پر میں نے دیکھا کہ جو میں یہاں سے سوچ کر گئی تھی کہ وہاں پہ کسی کو انگلش نہیں آتی ہوگی, صاف پانی نہیں ہوگا, کسی کو بولنے نہیں آتا ہوگا. ہم ہالیڈیز میں تو جاتے تھے چھٹیوں میں وزٹ کرنے, لیکن ایک مائنڈ سیٹ ہوتا ہے نا جو آپ میڈیا پہ دیکھتے ہو, جو آپ کو دکھایا جاتا ہے. اور ہمارے گھر میں تو ایسا بھی نہیں ہے کہ ویسٹرن میڈیا دکھاتا تھا, یہی GOARY, یہی ہم بچپن میں سنتے آتے تھے ان کی خبریں. تو جب میں وہاں پر گئی, اینڈ میں بیریا میں رہتی تھی, اینڈ جب میں نے وہاں پر انٹرنیشنل اکیڈمیز دیکھی, اسکولس دیکھے, میں نے کہا یہ کتنا مس ریپرزینٹ کیا جاتا ہے ہمارے ملک کو. جب میں یہاں واپس آئی تو مجھے اتنا زیادہ پیار ہو گیا تھا نا پاکستان سے اور وہاں کے لائف اسٹائل سے اور سب کچھ سے, کہ میں نے تبھی فیصلہ کر دیا تھا کہ ایٹ سم پوائنٹ میں واپس جاؤں گی. لیکن یہ کہ اپنا بار کمپلیٹ کر کے وہاں واپس جانا, وہ اوبویسلی جو اس طرح کے حالات اب ہمارے ملک میں بن گئے ہیں, مجھے ہے کہ بس مجھے جا کر اپنے ملک کی مدد چاہیے. اچھا آمنہ, آپ کیا جو ہمارے یہاں پہ پاکستانی کمیونٹی ہے اوورسیز, کیونکہ آپ اوبویسلی آپ سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ ووکل ہیں, کیا ان کو میسج دیں گی, کیا وہ کر سکتے ہیں پاکستان کے لیے؟ اچھا, میرا اپنا بھی مائنڈ سیٹ ایسا ہی ہے جیسے ماہین کہہ رہی ہیں کہ آپ کہیں بھی دنیا میں چلے جائیں, آپ اپنی روٹس کو بالکل فرگیٹ نہیں کر سکتے, اور کرنا بھی نہیں چاہیے. اپنی جو آپ کا اصل ہے آپ اس سے دور جا نہیں سکتے. اور یہ ایسی کوشش جو بندہ کرتا ہے, آئی تھنک وہ آدھا تیتر آدھا بٹیر والی بات ہوتی ہے, آپ مذاق بنتے ہیں اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا. بجائے اس کے ان کمپلیکسز سے نکل کے آپ اون کریں اپنی نیشنلٹی, اور آپ بتائیں کہ ہم پاکستان میں, اور ہمارے پاکستان سے بہت بہت اچھی چیزیں ہیں, بہت اچھی پرسنالٹیز نکلی ہیں. آپ اگر نام لیں گے تو عمران خان سے لے کر عبد القدیر خان سے لے کر عبدالستار ایدھی ایسے لوگ ہیں, ملالہ, جن سے دنیا پوری پراؤڈ ہے. تو ہم لوگ کیوں اشیمڈ فیل کرتے ہیں اپنی پرسنالٹی کو, اپنی نیشنلٹی کو اون کرتے ہیں. اور مجھے بڑا افسوس بھی ہوتا ہے کہ اوورسیز پاکستانیوں میں یہ بات بہت زیادہ ہے کہ وہ یہاں پر آتے ہیں اور ان کو لگتا ہے کہ مطلب ہم بلونگ یہاں سے کرتے ہیں اور ہمارا کوئی تعلق نہیں, ہم اپنی روٹس کو پسند نہیں کرتے, ہمیں پاکستانی پسند. آپ کو کیسے نہیں پسند؟ مطلب اگر آپ اپنے بلڈ کو, اپنے لینڈ کو, مٹی کو پسند نہیں کرتے تو آئی تھنک آپ کو اپنی ذات ہی نہیں پسند, اور اس سے بڑا کمپلیکس کوئی نہیں ہے. اسٹرانگ میسج ہے. بہت شکریہ آپ دونوں کا آئی, اور مجھے آج وقت کا بالکل پتہ نہیں چلا, لیکن سامیہ کو ضرور پتہ چلا ہوگا کیونکہ ان کی جو سیکنڈ ڈش ہے وہ ریڈی ہے. تو سامیہ کی طرف چلتے ہیں. جی سامیہ. جی بالکل سب کچھ ریڈی ہے, اور آج ہم لوگوں نے زیادہ کوئی اسٹوو ٹاپ کوکنگ نہیں کی, صرف مینلی اسمبلی والے آئیڈیاز تھے. سو ہمارے سینڈوچ پلیٹرز بھی ریڈی ہے اور ہمارے یورکشائر پڈنگز بھی ریڈی ہے. سو چکن اینڈ سویٹ کارن, ٹونا میونیز, ایگ میو اینڈ اسٹفڈ یورکشائر پڈنگز. اور اس میں آپ کسی بھی سوس کے ساتھ اس کو سرو کر سکتے ہیں, کیچپ, میونیز, چلی سوس, سویٹ چلی سوس, وہ آپ کی اوبویسلی 100% از یور چوائس ہاؤ یو لائک ٹو ہیو اٹ. اب تو بس انتظار ہے تو افطاری کا. بہت شکریہ. بالکل افطار بھی کچھ ہی وقت میں بھی ہو جائے گا, اور زبردست جو ہم نے اپنے مہمانان کے ساتھ بھی ڈسکشن کی, بہت اچھا لگا. تھینک یو سو مچ. آپ دونوں کو مل کے ویسے بھی خوشی ہوئی, پاکستانی ہونے کے ناطے بھی خوشی ہوئی, اور پھر خاتون ہونے کے ناطے اور بھی فخر و خوشی ہوئی. بالکل. ناظرین بالکل پروگرام ایک اور زبردست مہمانوں کے ساتھ ایک اور جو زبردست پروگرام تھا وہ آپ نے دیکھا. اپنے فیڈ بیک سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا. بالکل وقت ہوا چاہتا ہے اس وقت ایک جو ہم بریک لیں گے, بریک کے بعد ہم تو یہاں پہ نہیں ہوں گے, جو آگے ٹرانسمیشن ہے وہ آگے چلتی رہے گی اس طرح سے. اور آخری 10 دن شروع ہو رہے ہیں رمضان المبارک کے, ان سے بھرپور فائدہ اٹھانے کے لیے توقع کیجیے. رمضان المبارک میں اگر اب تک کچھ کمی رہ گئی ہے تو اس کو بھی کور کرنے کی کوشش کیجیے. فی الوقت یہاں سے اجازت دیجیے, نیلم کو بھی, مجھے بھی. اللہ نگہبان.